This is the book of class 9 chemistry. Okay, and today we are doing the practical number. I think practical number 9. सही है, electrolytic practical. See here, observe here. This is our electrolytic practical today. Come here, शुरू करीब कीजिए. शुरू करीब कीजिए. हाँ शाबाश. फोकस यहाँ कर. Students, we are solving this practical. और करीब कीजिए इसको. Of to test the passage of electric current. इलेक्ट्रिक करंट को टेस्ट करना है कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल है या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक. इस प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स हमारे को एपरेटस क्या क्या चाहिए देखें. 2 कॉपर स्ट्रिप्स. ठीक है, सो वी हैव द सी हियर, यहाँ दिखाइए. वी हैव 2 कॉपर स्ट्रिप्स. दीज आर 2 कॉपर स्ट्रिप्स. ओके, इसको करीब कीजिए थोड़ा सा. कॉपर स्ट्रिप्स. ओके, 1 बीकर. दिस इज बीकर. 1 एमीटर वी हैव. 1 की वी हैव. ओके, एंड वी हैव bulb we have required. Okay, bulb करीब कीजिए. चीज़ कितनी नजर bulb. And we have required some chemicals like sodium hydroxide solution. We have required sodium chloride solution, and we have required copper sulfate solution, and we have required sugar solution. But I don't have sugar of this time. So इधर फेस कीजिए. तो ये सब केमिकल्स, ये सब एपरेटस हमको रिक्वायर्ड है. करीब कीजिए इसको. ठीक है. ओके, केमिकल्स आपको मैंने बता दिए हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाते हैं. और जिन सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सी हियर स्टूडेंट्स, बीकर. इन दिस बीकर I will put up some water. Okay, first of all I am putting water in this solution, in this beaker. Okay, see here. Kinza, bring me water, more water. Stop. So students, I am adding some water into this beaker, and I drop some sugar, some salt in this beaker. So students, this is the water. Okay, now I am putting some sodium chloride. See here, this is salt. Sodium chloride solution chemical is a chemical I am adding in this beaker. Okay students, I have added some sodium chloride. Now I am stirring this solution. So I am dissolving sodium chloride into the beaker. See here. This should be dissolved, okay? Because sodium chloride salt is solute and water is solvent. So solute plus solvent is equal to the solution. Solute और solvent मिलकर एक solution बनते हैं students. ये हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसमें ऐड किया है, नमक ऐड किया है, नमक हमने इसमें डाला है और मैं इसको स्ट्रिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. ओके, नाउ ये कॉपर स्ट्रिप्स जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है. ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इसके यहाँ पे देखिए बल्ब के अंदर जो है, यहाँ पे एक वायर इसका बल्ब का जो है इसका जो है कनेक्शन का हम एक वायर बल्ब के साथ लगाएंगे और दूसरा वायर इसको ज्वाइन करेंगे. ओके, सॉलिए आप इन दोनों वायर्स को पकड़ लीजिएगा. ये छोड़े, मैं खुद पकड़ लूँगा. ठीक है, स्टॉप कीजिए. एक मिनट. नाउ स्टूडेंट्स, सी हियर, I am attaching 2 wires. I am connecting. So you are seeing the bulb is glowing, and you are seeing the meter needle is now moving. Okay, a bulb is glowing. Okay, so it means that sodium chloride is an electrolytic solution, and this is passing the electricity. Okay, so students, stop. यहाँ में तो stop. So students, this is the copper sulfate. Okay, this is copper sulfate, this is the salt. Okay, and this is an electrolytic compound because copper sulfate को जब हम इसमें बीकर में डालेंगे और वाटर मिक्स करेंगे तो इसमें से बल्ब ग्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी. तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. So I put it copper sulfate crystals into the beaker. Now I am adding some water. Okay, Kinza. So students, now I am filling this water into this copper sulfate solution. Okay, I am filling water into this beaker, and copper sulfate salt is already present in this. So now I am stirring this copper sulfate solution. इसको मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि ये पूरा डिजोल्व हो जाए. बिकॉज दिस इज आवर सॉल्यूट. यू नो वेरी वेल, कॉपर सल्फेट इज द सॉल्यूट जो हमने कम क्वांटिटी में डाला है, और वाटर इज अ सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी. पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो एक सॉल्वेंट है. नाउ आई एम डिजोल्विंग दिस कॉपर सल्फेट इनटू दिस वाटर. ओके, स्टार्ट.
Student, now this is copper sulfate solution I made. Okay, you know very well this is copper sulfate solution. Okay, now I am connecting these two wires from this bulbs. See here, bulb will glow. Okay, bulb will glow. You are seeing bulb is glowing and the ammeter switch ammeter needle is moving. Okay, so it means that current is passing through this copper sulfate solution, and now this copper sulfate solution is an electrolytic solution. Okay. Students, this is sodium hydroxide. Okay, now I am putting this sodium hydroxide crystals into this beaker. Okay, so sodium hydroxide is using as the solute. So students, these are sodium hydroxide crystals which I put it here in this book. So now I am putting these crystals into this beaker. इसको मैं beaker में डाल रहा हूँ, ये देखिए. So I put it this sodium hydroxide crystals into this beaker. Yes, now I am dissolving it. Seeing this is the solute. You are seeing on the bottom of the beaker, this is solute sodium hydroxide and water is our solvent. So I am now dissolving this sodium hydroxide solution into this beaker. बहुत एहतियात से करना पड़ता है. अभी नहीं. Now students, I put it the sodium hydroxide flakes into this beaker, this sodium hydroxide flakes, and I dissolve this solution into this beaker. So this is sodium hydroxide solution. Now I am connecting these two wires with sodium hydroxide solution. So we shall check out. So this bulb is glowing and meter needle is now moving. You are seeing that meter needle is now moving. So this is our electrolytic solution. It means that electricity is passing through this sodium hydroxide solution. So students, this is our sugar. You are seeing this is sugar solution. Now we are testing our electrolytic practical with sugar. Sugar is our electrolytic non-electrolytic compound. So I am putting this sugar into this beaker. So I have added sugar into this beaker. Now I am adding some water into this beaker. Okay. So students, I have put it some sugar into this beaker. So sugar is our solute and water is our solvent. And now I am dissolving this sugar into this water. So this is this will make a solution. Okay students, and sugar is a non-electrolytic solution. Sugar couldn't pass the electricity. इसमें से electricity pass नहीं होगी, यानी कि bulb glow नहीं करेगा. ठीक है, तो bulb glow ना करना इसका मतलब ये है कि sugar क्या है, शक्कर क्या है, हमारा एक non-electrolytic compound है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, शुगर हैज बीन डिजॉल्व. शुगर इसमें डिजॉल्व हो गई है. तो अब इस सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं. ठीक है. सो आई एम कीपिंग दिस, आई एम चेकिंग दिस in sugar solution. Okay, I put it these two copper strips. Now I am attaching these two wires with this bulb. Okay, so you are seeing the bulb is not glowing. Bulb glow नहीं कर रहा. It means that sugar is a non-electrolytic solution. Okay, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो शुगर क्या हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑब्जर्व 4 सॉल्यूशंस. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सो बल्ब हैज ग्लोन, हेड ग्लोन, बल्ब ग्लो किया था इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बल्ब हेड ग्लोन, बल्ब जल गया था इसमें भी, तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बल्ब हेड ग्लोन, बल्ब जला था, तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. और स्टूडेंट्स, शुगर सॉल्यूशन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इसमें बल्ब ग्लो नहीं करा, तो इसमें से यानी कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव ऑब्जर्व दिस प्रैक्टिकल. सो observation column. In this observation column you are seeing these are name of solutions. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में स्टूडेंट बल्ब ग्लो कर गया था, बल्ब जल गया था, तो हमने यहाँ ग्लोइंग लिखा है. और जो हमारी एमीटर की जो नीडल थी वो मूव कर रही थी, तो हमने लिखा डिफ्लेक्टिंग. ठीक है. और ये जब ये बल्ब इसमें ग्लो कर गया तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ हमने लिख दिया ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. ओके. सेकेंड कंपाउंड इज कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो कर गया था स्टूडेंट, तो हमने यहाँ लिखा ग्लोइंग. और मीटर की जो नीडल थी वो मूव कर रही थी, तो हमने लिखा डिफ्लेक्टिंग. मूव करने को डिफ्लेक्टिंग लिखेंगे, अगर मूव नहीं करेगी तो नॉट डिफ्लेक्टिंग लिखेंगे. तो नीडल मूव कर रही थी, और तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया. थर्ड नंबर पे हमने चेक किया शुगर सॉल्यूशन. जो चीनी वाला सॉल्यूशन था उस पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, तो ये नॉट ग्लोइंग लिखेंगे. और नीडल मूव नहीं कर रही थी, तो हमने इसको नॉट डिफ्लेक्टिंग लिखा, तो ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा. और फोर्थ में हमने इथाइल अल्कोहल की जगह स्टूडेंट हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया था, तो कॉपर सल्फेट में बल्ब ग्लो कर गया था. ठीक है, तो हमने इसको अभी रहने दिया है, इथाइल अल्कोहल को हमने टेस्ट नहीं किया. तो स्टूडेंट्स, ये रीडिंग्स हो गई इसकी. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपकी जो यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एंड NaOH
सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पे बल्ब ग्लो किया था और NaOH पे बल्ब ग्लो कर गया था, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के दोनों के नाम लिखते हैं। और दूसरे नंबर पे शुगर, जो शक्कर है, शुगर और इथाइल अल्कोहल की जो को हमने टेस्ट नहीं किया। शुगर क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस पे से बल्ब ग्लो नहीं किया था। ठीक है, अगर हम इथाइल अल्कोहल को टेस्ट करते हैं तो ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इस पे बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम देखिए, सी हियर द डायग्राम, see here the diagram. So students, this is our beaker and these are two strips which we have connect. First of all इसका connections कैसे करने हैं स्टूडेंट्स, एमीटर लेना है, एमीटर को आप ये बैटरी के साथ ज्वाइन करना है, बैटरी का वायर हम बल्ब के साथ लगाएंगे और बल्ब का वायर हम इस कॉपर स्ट्रिप के साथ लगाएंगे, दूसरा कॉपर स्ट्रिप का वायर मीटर के साथ लगा देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। देखें यहाँ पे पूरा ये शो कीजिए, पूरा ये सब नजर आना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, लाइक और सब्सक्राइब माय वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।